دوستوں، بہت ہی مزیدار ایپیسوڈ صوفی کے ساتھ مستیاں، ماہی اور گلزیب کے ساتھ گپ شپ، وہ بھی بلبیر سنگھ کے گھر۔ امید ہے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ سب دوست ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ صوفی کے ہونٹوں کی سرخی دیکھ کر میرے ہونٹوں کی خشکی بڑھنے لگی۔ میں زبان کے لعاب سے ہونٹوں کی خشکی دور کرتے ہوئے بولا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تم نے یاد کیا میں دوڑا چلا آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے صوفی کے رخساروں پر ہتھیلیوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب لا کر دوری کے تمام رستے دور کر دیے۔ گلاب کی پنکھڑیوں کو دیکھ کر، کمر کو مچلتے دیکھ کر صوفی کی پنکھڑیوں نے حرکت کرتے ہوئے بھنبرے کو پنکھڑیوں کا رس چوسنے کی اجازت دی۔ آج مدتوں بعد بھنبرے کو گلاب کی پھرتیوں کا رس نچوڑنے کا موقع میسر تھا۔ صوفی میری قمیض کو کمر سے مٹھی میں کھینچ کر دوسرے ہاتھ میں میری گردن کی پشت پر لے آئی۔ میں نے اس کے رخساروں کا ہاتھوں کے پیالوں سے آزاد کر کے ایک ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر اس کو جھٹکے سے آگے کرتے ہوئے ساتھ کر لیا۔ ہائے کیا ظلم تھا جب اس کا لمس محسوس نہیں ہوا۔ کمبخت جیکٹ دیوار بن کر حائل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک لمحہ میں اس دیوار کو محسوس کرتے ہوئے کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیکٹ اتارنے کا اشارہ کیا۔ میں تو اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ہم کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ پھر ایک دوسرے سے الگ ہو کر کچھ کہہ پاتے۔ اس لیے صوفی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ صوفی کے جذبات بھی مجھ سے جدا نہیں تھے۔ جو بھی غنچہ تیرے ہونٹوں پہ کھلا کرتا تھا وہ تیری تنگی داماں کا گلا کرتا تھا۔ دیر سے آج میرا سر ہے تیرے زانوں پر، یہ وہ رتبہ ہے جو شاہوں کو ملا کرتا ہے۔ میں تو بیٹھا ہوں دبائے طوفان کو تو میرے دل کی دھڑکنے کا گلا کرتا ہے۔ رات یوں چاند کو دیکھا ہے ندی میں، جیسے عمر تیرے ماتھے سے ہلا کرتا ہے۔ جب میرے سیج پہ ہوتا ہے بہاروں کا نزول، صرف ایک پھول کواڑوں میں کھلا کرتا ہے۔ کون کافر تجھے الزام تغافل دے گا، جو بھی کرتا ہے محبت سے گلا کرتا ہے۔ بس پھر ہم اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ صوفی کے نرم ہاتھوں نے جیسے ہی میری کمر کو چھوا، چاروں اطراف شور سا برپا ہو گیا۔ مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگیں، آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی۔ اس بکھرے طوفان کے سامنے سونامی کا طوفان بھی معمولی پڑ گیا۔ دونوں کے ہونٹوں نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یوں کھڑے کھڑے دونوں بیڈ پر جا گرے۔ بیڈ پر گرتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو بازاہے میں بھینچ کر بیڈ پر گھومنا شروع کر دیا۔ کبھی صوفی میرے اوپر آ جاتی تو کبھی میں صوفی کے اوپر آ جاتا۔ صوفی کے ساتھ اس کی گہری سانسوں کا طوفان اس کی بات کی پیشنگوئی کر رہا تھا کہ چند لمحے بعد طوفان بارش کا امکان ہے۔ صوفی کے چہرے کی رنگت اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ صوفی کو اب آرام مل گیا ہے۔ جس بارش کی پیشنگوئی ہو رہی تھی وہ بارش برس کر زمین کی گرمی کو ختم کر چکی تھی۔ میں صوفی کی نشیلے محصور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ اتنی جلدی ہمت ہار گئی ہو؟ صوفی اکھڑی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور تھوک نگلتے ہوئے بولی، یاسر، تمہاری قربت نے میری بس کروا کر رکھ دی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی چھونا باقی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے کہا، چھونا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ صوفی نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، اچھا یاسر، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ابھی کیا کیا باقی ہے؟ میں رومانٹک انداز میں صوفی کی مخمور کن آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، ابھی تو خوشبو کے کنول جلانے ہیں، ابھی تو پھولوں کی سیج پر اس چاند کو لانا ہے، ابھی تو تجھے رشک حیات بنا کر عشق و محبت کی ایک مملکت بنانی ہے۔ صوفی بولی، مجھے تو لگتا ہے ہماری زندگی یوں ہی ترس کر گزر جائے گی۔ تم پاس ہو کر بھی دور لگتے ہو۔ تمہاری قربت میں رہ کر میری پیاس میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے سپنے ادھورے ہی رہ جائیں گے۔ جب تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو گمان ہوتا ہے کہ میری سانسوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ ایک دن اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا، اور تم میرے ساتھ ہو کر بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں تڑپ کر ہاتھوں کی انگلیوں میں صوفی کی انگلیوں کو بھینچتے ہوئے بولا، کون روح کو جسم سے علیحدہ کر سکتا ہے؟ بولو۔ جانا تھام لیتا ہے میرا ہاتھ، میرا وعدہ ہے، عمر بھر تیری پازیب تک دباؤں گا، تو کرم ماں کے بھول جانا۔ میں تیری اتنی ناز اٹھاؤں گا، تیری گل رخ کی تازگی کے لیے عمر بھر شبنمی گیت گنگنا رہے گا۔ خانقاہوں کے بعد تیری لیے مندروں میں بھی دیا جلاؤں گا، مانگ تیری درخشاں رکھنے کو کہکشاں بھی توڑ لاؤں گا۔ دل کی رات ہے، نوکرانی نہیں، اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا، تیری گھر والے روز آئیں گے، ان سے یوں رابطہ بڑھاؤں گا،
घर से मैं सीधा जाऊंगा दुकान पर, दुकान से सीधा घर आऊंगा। यारों के ताने ना मौज पर, हर रोज माँ असर हूं कि तेरे साथ खाना खाऊंगा। चांदनी रात में मनपसंद ग़िज़ा लुकमा लुकमा तुझे खिलाऊंगा। कासा आप पहले दूंगा तुझे प्यास अपने बाद में बुझाऊंगा। सूफी मुस्करा कर बोली, बस बस ए। मैं मुस्करा कर सर हिलाते हुए बोला, भूल जाना घर की उक्ता है। शब भर तुझे इस कदर घुमाऊंगा, वैसे अगर भर आए दिल तो रू लेना, मगर ये सोचना भी ना कि मैं तुझे सताएगा। अगर खता तुझसे भी हो गई तो तेरी खता पर भी सिर्फ मुस्कराऊंगा। चंद लम्हे खफा हुई भी अगर वादा है पहले मैं मनाऊंगा। रात के 12 बजे तो सुई अगर दिन के 12 बजे जगाएगा। सूफी के चेहरे पर मोहब्बत की लाली बढ़ने लगी। इसे मुझ पर बेपना प्यार आ रहा था। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, और कुछ रह गया है? मैंने कहा, बहुत कुछ। और सूफी होंठों को मुस्कुराने लगी। क्या? मैं फिर से बोला, जल गई हुंडी अगर कभी तुझसे। अगले दिन खाना मैं बनाऊंगा। बेटियां हो या बेटा ये इसकी अता, दोनों को पलकों पर बटेवाहेगा। तुम बेफिक्र कान के नीचे तकिया रख के सो जाना। मेरे बच्चे हों तो मैं उन्हें सलाहेगा। सूफी एकदम खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, बस बस शायरी में बच्चे भी पैदा कर लिए, अब बच्चों को जवान करके उनकी शादियां न करने लग जाना। मैं मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? हमारे बच्चे नहीं? सूफी मेरी नाक को पकड़कर दबाते हुए बोली, पहले शादी तो कर लो, फिर बच्चे भी। शादी से पहले ही बच्चे पैदा करने का प्रोग्राम है। मैंने कहा, सबसे पहले शादी होगी। सूफी बोली। फिर? मैं बोला, फिर बच्चे होंगे। सूफी हंसते हुए बोली। फिर? मैं बोला। फिर सूफी झट से बोली, फिर लड़ाइयां होंगी। और मैं तड़प कर बोला, सोचना भी मत जान, मैं तुमसे लड़ूंगा। शको तुझसे करूंगा भी सिर्फ खलवत में, सामने सबके तुझे गिन में गाऊंगा। फैसले हम मिल जल के करेंगे, हुक्म हाकिम नहीं चिल्लाऊंगा। सूफी बोली, सब बातें जहन में रखना, फिर क्या करोगे? मैं मुस्कुराते हुए बोला, रंग मुरीद का ताना जूते की नोक पर, मर्द बिन कर वफा को निभाऊंगा। एक दिन तेरा एक दिन मेरा, तेरी पर कब्जा जमा होगा। बुरी बातें नहीं सुनूंगा। सूफी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, एक बात तुम भूल गए हो। मैं चंद लम्हे सोचने के बाद चौंक कर बोला, मुझे मोहब्बत सोचा के है तो यूं शादी का दिन मैं भूल जाऊंगा। जग मनाएगा साल बाद ईद देख के चांद, मैं तुझे देखकर हर रोज ईद मनाऊंगा। सूफी एकदम संजीदा होकर बोली, यासिर तुम कैसे मेरे दिल की बात जान लेते हो? मैं मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुमसे जिस्म का नहीं दिल का रिश्ता है, इसलिए बन कहे तेरी बात समझूंगा, बन कहे दर्द जान जाऊंगा। इल्म ताकत कमाई अक्ल जमाल, एक भी रोब ना जमा होगा। जब कुछ खेल खेले हम तुम, सोच कर भी कुछ में हार जाऊंगा। अपनी हर कामयाबी का सेहरा मैं तेरे इश्क पर ही सजाऊंगा। सूफी ने मेरे हाथों से हाथ छड़ाकर मेरे चेहरे को हाथों के प्यालों में लेकर सर उठाकर मेरे होंठों को चूम कर भीगी आंखों से बोली, यासिर अगर मैं मर गई तो? मैं तड़प कर सूफी की कमर में बाजू डालकर इसे अपनी बाजाहे में भींचते हुए बेतहाशा इसके चेहरे को चूमते हुए बोला, अगर कभी वक्त मर्ग एक को बचाना हुआ देकर जान अपनी मैं तुझे बचाऊंगा। मैं फकत तुझको ही दिल में बसाए रखूंगा, मेरा फकत तुझसे रूका मिलन होगा। जख्म और तलखी के सवा जाना तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। सूफी ने अपने बाजुओं को मेरी कमर के गिर्द किस कर बोली, यासिर क्या सारी जिंदगी तुम मुझे यूं ही चाहते रहोगे? मैं सर हिलाते हुए बोला, हिस्न के ढलने की तो फिक्र ना कर, आखिरी सांस तक तेरा साथ निभाऊंगा। हिजरन तकदीर अगर लिखा जुदा होना, रुखसत दुनिया से पहले मेरी होगी। तुझसे दूर होकर भी सिर्फ हल्का सा याद आऊंगा। खुल्द में भी होगा हमारा साथ, वहां मेरी हुरें कुन्हैन तेरी, बन तेरी मैं खुल्द में भी ना जाऊंगा। मेरे अल्फाज को तो फकत सुन के इतना खुश ना हो, मैं तुझे ये सब करके दिखाऊंगा। और क्या चाहता हूं मेरी खुलूस मोहब्बत का, हर रात तुझे एक नई गजल सुनाऊंगा। मेरे हर लफ्ज में मेरी मोहब्बत की तशरीह कर रहा था, मेरे पुख्ता इरादों की वजाहत कर रहा था। मेरे लफ्जों की जंजीरों में सूफी जकड़ी जा चुकी थी, मेरे अशार के सहरा में गुम होकर वो मेरी आंखों में खोई होती थी। चंद लम्हों के लिए हम दोनों के होंठ साकित हो गए थे। हसन सहर में जकड़े एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में डूब रहे थे। चंद लम्हों बाद सूफी ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, यासिर तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही।
एक एक लम्हा सदियों की तरह लग रहा है। ये ना हो मैं शब अरूस के इंतजार की इस आग में जल कर राख हो जाऊं। मेरी राख को ये हिजर के तूफान बखेर कर रख दे और तुम इस तूफान में दीवानों की तरह मेरी राख के जर्रों को फिरो। इससे पहले कि हिजर की अजियत में मैं बखर जाऊं तो मुझे अपना नाम देकर मुझे अपनी बाहों में समेट लो। मुझे अपने निकाह के बंधन में बांध कर अपने पास किताब में रखे फूल की तरह महफूज कर लो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जान, अपने घर पहुंचकर हम सबसे पहला यही काम करेंगे। मुझसे भी अब ये हिजर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। समंदर के पहलू में लेटकर सिसक कर चंद घूंट पानी के अब मुझसे नहीं पिया जाता। मैं अब समंदर में डूबकर समंदर की तह में उतरना चाहता हूं। तुम्हारे नशीले बदन के नर से मैं धत होकर हर हद पार करना चाहता हूं। सूफी बोली, यासिर ऐसी बातें करके मुझ पर जुल्म मत करो। मैंने जिस तूफान को अपने अंदर समेटा हुआ है इसे हुआ देने की कोशिश न करो, वरना ये सब कुछ आड़ा ले जाएगा। इश्क ना वक्त देखता है ना हालात देखता है। बस जल्दी से मुझे वापस घर ले चलो। मैंने कहा, हाय जान, अब कैसे बताऊं कि मेरे अंदर का तूफान कैसे लावे की तरह फटने के लिए बेचैन है, मगर मजबूरियों ने पांव में ऐसी जंजीरें डाली हुई हैं कि हम चाहकर भी 3-4 दिन से पहले यहां से वापस घर नहीं जा सकते। सूफी बोली, अब कौन सी मजबूरी है? हम सब तो आजाद हो चुके हैं, अब क्या किसी और का भी इंतजार है? मैंने कहा, मुझे एक और काम निपटाना है। बस दुआ करो वो काम मुकम्मल हो जाए, इसके बाद हम वापस रवाना हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह जज्बा मेरे दिल में है इसी तरह का जज्बा तुम भी अपने दिल में रखती हो। कल तुमने नहीं सुना था कि मेरा दोस्त क्या कह रहा था कि जैसे तुम दिलबर हो, तुम्हारी बेगम इतनी दिलबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रैक्टिकल के जरिए इन सब के मुंह बंद करो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। सूफी चौंक कर मेरी जानिब देखते हुए बोली, अब तुम कौन सा काम निपटाना है? मैंने कहा, पहले मेरी पूरी बात गौर से सुन लो, इसके बाद जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। जो तुम्हारा हुक्म होगा, तुम्हारे हुक्म के आगे मेरा सर खम होगा। सूफी तड़प कर बोली, यासिर, तुम मुझसे जितनी मोहब्बत करते हो मुझसे बेहतर कौन नहीं जानता। तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे खुलूस में जरा बराबर भी शक करना मैं गुनाह समझती हूं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मेरे सामने इतना गिरा कर खुद को हक बजानिब साबित करने की कोशिश करने लगो। रश्क तुम ये सब मेरी मोहब्बत में कर रहे हो, मगर तुम मर्द हो और मैं औरत हूं। मर्द का मकाम औरत से कई गना बड़ा है। तुम मेरे शाह के ताज हो, मेरे बादशाह हो। मैं तुम्हारी मलिका बनकर रहना चाहती हूं। तुम मेरे हाकिम हो, मैं तुम्हारी कनीज बनकर रहना चाहती हूं। सूफी की बातें सुनकर मैं मुंह खोले इसे देखता रह गया। वैसे तो मेरे दिल में तो क्या, मेरे पूरे वजूद का कौन सा कोना खाली नहीं था जिसमें सूफी बसी ना हो। फिर भी सूफी की बात सुनकर उसकी इज्जत मेरे दिल में कई गना बढ़ गई। खुशी से मेरा सीना चौड़ा हो गया कि कुदरत ने बीवी की शक्ल में मुझे ऐसा तोहफा दिया है जिससे मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है। मैं मुस्कुराते हुए सूफी के होंठों को चूम कर बोला, मुझे खुशी होती है तुम्हारी बात सुनकर, मगर मैं तुमसे जो कहना लगा हूं पहले मेरी बात गौर से सुन लेना और बातों को अच्छी तरह समझकर फिर मुझे जवाब देना। सूफी चौंक कर बोली, कौन सी बात? मैंने कहा, जब तुम लोगों को अगवा किया गया था तो तब जिन लोगों ने मेरी मदद की थी और पाकिस्तान से यहां पहुंचने तक हर मुश्किल मोड़ पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आज उनमें से 2 साथी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर आने वाली कड़ी से कड़ी मुश्किल का डट कर मुकाबला किया, आज मैं उनको बाजियाब कराने में उनका साथ दूं। बजाय इसके कि मैं उनको मुश्किल में फंसा छोड़कर अपने वतन, अपने घर वापस जा रहा हूं, उनको मुश्किल से निकालकर अपने साथ अपने वतन ले जाऊं। क्योंकि एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो, अगर वो लोग मेरे साथ ना देते तो मैं सारी जिंदगी टुकड़े टुकड़े मारता रहता, तुम लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। अब तुम ही बताओ कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा यासिर एहसान फरामोश, बुज़दिल, मतलब परस्त कहलाए। अब फिर सारी जिंदगी पछतावे में भाग जाने के इस बोझ को दिमाग पर सवार करके जिंदगी गुजारे। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त मलामत करता रहेगा कि कैसा एहसान फरामोश बुज़दिल इंसान निकला जो अपना मतलब निकलने के बाद अपने साथियों को मुश्किल में फंसा छोड़कर वापस भाग आया। क्या मैं इस लानत के बोझ को बर्दाश्त करके जिंदा रह सकूंगा कि ऐसी हालत में तुम्हें खुश रख पाऊंगा? बोलो सूफी, खामोश क्यों हो? सूफी तड़प कर मेरे चेहरे को हाथ में लेकर जोर जोर से सर हिलाते हुए बोली, नहीं यासिर नहीं, मेरी जान नहीं, मेरी जान नहीं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ?
अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। अगर तुम्हारा सीना चौड़ा है तो तुम्हारे जुड़े सीने को देखकर खुशी से मेरा सीना फख्र से बुलंद है। मगर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? मुझे कुछ बताओ तो सही। मैं गहरी सांस लेकर सूफी को वतन से रवानगी से लेकर कुन मुश्किल हालात से गुजर कर उनको बाजियाब कराने तक की सारी स्टोरी हर्फ बा हर्फ सुना दी, सिवाय कल्पना देवी और मनमय्यत कौर के। और इस मिशन में एक साथी की शहादत और 2 की गिरफ्तारी का भी बता दिया, जिनको आजाद कराने के लिए कुछ देर बाद हमें रवाना होना था। मेरी बातें सुनकर सूफी की आंखें भीग गईं और वो गहरी सोच में कम हो गई। इसको यूं गहरी सोच में गुम देखकर मुझे शक लगा कि सूफी कभी मुझे जाने की इजाजत नहीं देगी और वो रोना धोना करके मोहब्बत के वास्ते देकर मुझे रोकने पर मजबूर करेगी। चंद लम्हे इसे देखने के बाद मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रही हो? इतना जहन पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही फैसला तुम पर छोड़ दिया है। जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा, और अगर तुम कहोगी कि ना जाओ तो मैं नहीं जाता। सूफी तड़प कर सर हिलाते हुए बोली, नहीं यासिर, मैं इतनी भी खुद गरज नहीं हूं और ना ही इतनी कमजोर हूं। अगर ऊपर वाले ने हमारे दिलों को जोड़ा है, हमारी रूहों को एक किया है, तो जो जज्बात तुम्हारे हैं वही मेरे भी हैं। अगर मुझे सारे वाकयात का इल्म ना होता तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने ना देती और तुम्हें रोकने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करती। मगर यासिर, अब बात तुम्हारी इज्जत की है, बात अपने वतन के वकार की है, बात अपने वतन की बेटियों की इज्जत नफस की है। अपने वतन की इज्जत की खातिर मुझे अपनी तुम्हारी जान का नजराना देना पड़ा तो मैं इस पर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करूंगी। ये कहते ही सूफी का लहजा गिलगला हो गया। इसकी आंखों से मोती टपकने लगे। सूफी की बातें सुनकर इस वक्त मेरी जो कैफियत थी, मैं इसे लफ्जों के मोतियों में प्रोकर बयान नहीं कर सकता। अपने वतन की इज्जत के लिए कुर्बान होने का इतना जज्बा कभी मेरे अंदर पहले पैदा नहीं हुआ था जितना जज्बा सूफी के बोल सुनकर मेरे अंदर पैदा हो गया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे सूफी ने एक लम्हे में सारे जहां की खुशियां मेरी झोली में डाल दी है, और इस खुशी की शिद्दत में मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ये आंसू खुशी के थे, जज्बात के थे, जज्बात से शुक्रगुजार होने के थे। मैं तड़प कर सूफी के रुखसारों को हाथों में ले लिया। खुशी की शिद्दत से मेरे हाथ लरज रहे थे। आज मुझे इस बात की शहादत मिल गई थी, प्रूफ मिल गया था कि मेरे वतन की फौज में इतना जज्बा क्यों होता है, उनके हौसले इतनी बुलंद क्यों होते हैं, वो तादाद में कम होने के बावजूद उनको मात क्यों दे देते हैं। क्योंकि उनके सर पर माँ बाप का हाथ होता है, उनके कंधे पर बीवी का हौसला अफजा हाथ होता है, उनके पीछे बहनों की दुआओं का हाथ होता है, उनके दिल में अपने वतन की मोहब्बत का परचम बुलंद होता है। उनका ईमान होता है कि मौत के मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं आ सकती। उनका भरोसा सिर्फ ऊपर वाले की जात पर होता है। सूफी के 2 बोल सुनकर मैं अपने अंदर ये सब फीलिंग महसूस कर रहा था। सूफी के चंद अल्फाज ने मेरे अंदर हर आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल का डट कर मुकाबला करने का हौसला पैदा कर दिया था। सच कहते हैं, हथियार नहीं हौसले फतह के झंडे गाड़ते हैं। हथियारों से जंग नहीं जीती जाती बल्कि पुख्ता इरादों से जंग जीती जाती है। जहां हथियार नाकाम हो जाएं वहां बुलंद हौसले काम आते हैं। मैं खुशी की शिद्दत से लरसते होंठों से बस इतना ही कह पाया, तुम वाकई अजीम हो। ये कहते ही मैं वालेहाना अंदाज में सूफी के चेहरे को चूमने लगा। मुझे सूफी पर इतना प्यार आ रहा था कि अगर मर्दांगी ना होती तो शायद मैं इसके कदमों तक चूम लेता। एक बार फिर से हमारे होंठों ने एक दूसरे के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक बार फिर से सूफी के पिस्तान मेरे सीने में धंस गए। कुछ ही देर बाद सूफी का जोश चढ़ गया। एक बार फिर से सूफी मेरे जिस्म में समा गई। मैं अपने बढ़ते हुए जज्बात को काबू में रखते हुए सूफी की हौसला अफजाई की खातिर उसका साथ देते हुए, सूफी मेरी गर्दन पर दांत गाड़ कर लव यू जान कहते हुए झटके ले रही थी। सांसों का तूफान थमते ही सूफी घूम कर मेरे ऊपर से लुढ़क कर मेरे पहलू में निढाल होकर गिर पड़ी। मैं करवट लेकर उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बोला, जनाब 2 दफा सुकून ले चुकी हो और मुझे 1 दफा का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी जल्दी आराम में हो जाऊं, क्योंकि हम ऐसी जगह थे कि जहां ये सब करना मुनासिब नहीं था। क्योंकि सबको मालूम था कि हमारी शादी नहीं हुई, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे बारे में कोई गलत राय कायम करे।
मेरी बात सुनकर सूफी अपनी सांसों को बहाल करते हुए बोली, मैंने तुम्हें कब रोका है? कमरे का दरवाजा बंद है। कनीज तुम्हारे पहलू में है। तुम मेरे हाकिम हो, अपनी कनीज को हुक्म करो, क्या कर सकती हूं? सूफी की बात सुनकर मैं वाह करके इस पर सदके जाने लगा और बोला, सब कुछ होने के बावजूद भी अभी वो वक्त नहीं है। सब इख्तियारात होने के बावजूद भी हद से तजावुज का इख्तियार नहीं है। इसलिए आज सिर्फ प्यास बुझाना चाहता हूं, अपनी आंखों की प्यास बुझाना चाहता हूं, तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं, तुम्हारे होंठों का जाम तिश्ना जा उठना चाहता हूं। शायद यही वजह थी कि इसके बाद मुझे खुद पर इख्तियार ना रहता और मैं किसी और तरीके से सुकून में हो जाता। अगर वक्त की किल्लत न होती तो शायद रात ही गुजर जाती, मगर हमारे प्यार में जरा बराबर कमी पेश नहीं आई। मजीद कुछ देर गुजरने के बाद बातों के दौरान सूफी ने अम्मी का जिक्र छेड़ते हुए मुझे याद दिलाया कि मैंने उनसे कहा था कि उनसे फोन पर बात करवाऊंगा। मैंने कहा, मैं बिलवेंदर सिंह से बात करता हूं, शायद फोन करने का कोई हल निकाल ले, क्योंकि लोकल नंबर से पाकिस्तान कॉल नहीं कर सकते थे और ना ही मैं ये रिस्क ले सकता था, क्योंकि इसी वक्त कॉल ट्रेस हो जाती थी। कुछ देर गुजरने के बाद सूफी बोली, माही और गिलजेब से भी कुछ देर बात कर ले, इससे उनको हौसला हो जाएगा, क्योंकि माही अम्मी को बहुत याद कर रही है। तुम उसे समझाओ कि हम 3-4 दिन बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। मैंने कहा, हाँ उनको ले आओ, वैसे भी 2-3 घंटे रह गए हैं, फिर मैं साथियों के साथ मीटिंग करता हूं, इसके बाद हम हरियाणा रवाना हो जाएंगे। सूफी मुझसे अलग होते हुए बोली, तुम अपना हल्दी ठीक कर लो, मैं उनको लेकर आती हूं। और हाँ, उनके साथ वो बात मत करना कि तुम्हारे साथी पकड़े गए हैं और तुम उनके सिलसिले में जा रहे हो। मैंने कहा, ओके नहीं कहता, वैसे भी मैंने तुमसे इजाजत ली थी, उनसे ये बात करना जरूरी नहीं है। सूफी ने भी अपने बाल वगैरह दुरुस्त करके दोपट्टा ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे कमरे में आए 4 घंटे हो चुके थे। सूफी की कुर्बत में गुजरे ये 4 घंटे 4 लम्हों जैसे लग रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और बजाय सूफी के एक औरत और एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। औरत को तो मैं पहली दफा देख रहा था, मगर जैसे ही मेरी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, मुझे इस कदर झटका लगा कि मैं बेइख्तियार बेड से उठकर खड़ा हो गया और लड़की के चेहरे को आंखें फाड़े देखने लगा, क्योंकि वो लड़की मनमयत कौर की मुशाबहत रखती थी। पहली नजर में इसे देखते ही यूं लगा जैसे ये मनमयत कौर ही है। मेरी चौंक का असल सबब भी यही था कि मनमयत कौर के मुगालते में एकदम खड़ा हो गया था। लड़की ने दोपट्टे का पल्लो माथे से थोड़ा आगे किया हुआ था, जिससे इसका चेहरा सामने से देखा जा सकता था। इस लड़की ने अंदर दाखिल होते वक्त बस नजर भर कर मुझे देखा, इसके बाद उसकी नजर ना उठी। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मनमयत कौर नहीं है, तो मैं अपने आप को चौंक कर खड़ा होते हुए वापस बैठ गया। बैठे हुए के बावजूद मेरे अंदर एक चींची थी। मैं मजीद तसल्ली के लिए आंखें फाड़कर इसे देखे जा रहा था। मेरे अंदर की चींची मुझे इस बात पर उकसा रही थी कि मैं किस तरह इस लड़की से मनमयत कौर के बारे में पूछ लूं कि क्या ये इसे जानती है, मगर ये पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं यूं चौंक कर खड़ा हुआ और आंखें फाड़कर देखने लगा तो इस लड़की ने भी ये महसूस किया था। मेरे रिएक्शन से वो घबरा गई थी, इसी वजह से इसने दोबारा नजर उठाकर मेरी जानिब नहीं देखा था। मैं सोचों में घूम रहा था कि वो लड़की टेबल पर बर्तन रखकर तेजी से कदम उठाती हुई वापस जा चुकी थी। इसके बाहर निकलते ही सूफी सालन का बाविल पकड़े अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे ही माही और गिलजेब भी अंदर दाखिल हुई। सूफी को यूं फैमिली मेंबर की हैसियत से काम करते देखकर मुझे दिली खुशी हुई। मैंने सूफी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, वाह भाई वाह, एक ही दिन में घर पर कब्जा कर लिया। ये मेरी बात सुनकर टेबल पर बर्तन सीट करती आंटी मुस्कुराती हुई बोली, यारे ये घर अब सबका है। इस घर में अब लोगों की हैसियत मेहमानों की नहीं बल्कि फैमिली मेंबर की है। सूफी भी इस घर की धीरियंट है, बहुत अच्छी, समझदार और बड़े अच्छे सलूक की मालिक है। एक ही दिन में सब घर वालों के साथ घुल मिल गई है। ये कहकर आंटी ने सूफी से हाथ पकड़ते हुए इसे बैठकर खाना खाने का कहा। गिलजेब के चेहरे पर पहले की निस्बत रौनक नजर आ रही थी, जबकि माही अभी तक अफसुर्दा थी। मैंने बढ़कर माही के सर पर प्यार दिया, इसे कंधे से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए कहा, क्या बात है माही प्यारी,
तुम अभी तक परेशान हो? कोई टेंशन है तो बताओ मुझे। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि ऊपर वाले ने तुम लोगों को बहुत जल्द इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। माही मेरे सीने पर सर रख कर रोती हुई बोली, भाई मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। मैंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसकी गाल से आंसू साफ करते हुए कहा, आंटी बिल्कुल ठीक है। जब वो तुम लोगों को देखेंगी तो खुशी से एकदम फटाफट हो जाएंगी। मैं आज ही आंटी से तुम्हारी बात करवा देने का बंदोबस्त करता हूँ, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, ठीक है ना? माही इस बात पर सर हिलाती हुई बोली, हाँ ठीक है, मगर मुझे अभी अम्मी से बात करनी है। ना जाने क्यों मेरे दिल में एक खौफ सा बैठा हुआ है जो हर वक्त मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा, ओके अभी करवा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम अब रोना नहीं और आंटी को भी तसल्ली देना कि हम सब खैरियत से हैं। अगर तुम उनसे बात करके रोती लग जाओगी तो तुम्हारे साथ वो भी मजीद परेशान होंगी। माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है नहीं रोऊंगी। ओ मैंने कहा, वादा? माही इस बात पर सर हिलाती हुई। मैंने कहा, ऐसे नहीं, मुस्कुरा कर पक्का वादा करो, फिर मैं आंटी से बात करवाऊंगा। ये माही जबरदस्त मुस्कुराते हुए बोली, पक्का वादा, नहीं रोऊंगी। मैंने कहा, गुड, ये हुई ना बात। चलो फिर इसी खुशी में पेट भर कर खाना खाओ। इसके बाद मैं आंटी को कॉल करवा देने का बंदोबस्त करता हूँ। कुछ देर में हमने खाना खत्म किया। इसी दौरान मेरा ध्यान बार बार इसी लड़की की तरफ जा रहा था जिसकी शक्ल मनमय्यत कोर से मलती थी। बर्तन रखने के बाद वो लड़की दोबारा कमरे में नहीं आई। कुछ देर बाद बिलवीर सिंह कमरे में दाखिल हुआ तो हमें खुशगवार मोड में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। आज तुम सबको खुश देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। मैंने कहा, इस खुशी की सबसे बड़ी वजह आप हो। जिस तरह आपने हमारी सपोर्ट की है, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बिलवीर सिंह मुंह बिसूरते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो? मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। वैसे भी लहंदी पंजाब से मेरा खून का रिश्ता है। आप लोगों को देखकर अपनायत का एहसास होता है। आइंदा ये एहसान वाली बात करके मेरा दिल मत दुखाना। मैंने हाथ जोड़कर अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेते हुए बोला, ये आपका बड़ा पिन है जो आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, जहां आपने हमारे लिए इतना किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो। बिलवीर सिंह ने मेरी कमर पर बाजू डालकर मुझे बगल में लेते हुए बोला, रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करो। ये सरदार अपनी जान देकर भी तेरा काम करेगा। हुक्म करो, क्या बात है? मैंने कहा, सरदार जी अगर हो सके तो पाकिस्तान कॉल करवा दें। अम्मी जान से सूफी और माही की बात करवा दें, क्योंकि हमें यहाँ 3-4 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे में एक तो उनको भी तसल्ली हो जाएगी और वहाँ की खैरियत भी मालूम पड़ जाएगी। अम्मी जान से बात करके ये दोनों भी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेंगी और उनको भी सुकून हो जाएगा कि उनकी बेटियां सही सलामत हैं। मेरी बात सुनकर बिलवीर सिंह चंद लम्हे सोचते रहे, फिर बोला, हो जाएगी कॉल और कुछ? मैं मुस्कुराते हुए बोला, बस यही हो जाए तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है। बिलवीर सिंह बोला, मैं 10 मिनट में आया, वापस आकर तुम्हारी बात करवा देता हूं, क्योंकि वायरलेस सीट के जरिए कॉल करनी पड़ेगी। लोकल नंबर से की तो मसला बन सकता है। मैंने कहा, जैसे आपको बेहतर लगे कर ले, हम तो बस बात ही करनी है, जैसे भी हो जाए। बिलवीर सिंह बोला, तुम बैठो, मैं 10 मिनट में वायरलेस सीट लेकर आता हूं, इससे आप लोग जितनी देर मर्जी बात कर लेना। ये कहकर बिलवीर सिंह कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बिलवीर सिंह कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पास जदीद किस्म का फोन सीट था जिस पर वायरलेस एंटीना लगा हुआ था। बिलवीर सिंह ने बेड पर सीट रखकर मुझसे घर का नंबर पूछा। नंबर डायल करते ही कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई तो रिसीवर मुझे पकड़ा दिया। मैंने उजलत में रिसीवर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, तो दूसरी जानिब से भाभी की हेलो की आवाज सुनाई दी। मैं जज्बाती अंदाज में बोला, हेलो भाभी, मैं यासिर बोल रहा हूं। दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी के बाद भाभी की भरी हुई आवाज सुनाई दी, यासिर, यासिर, तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए थे? कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। कम अज कम एक कॉल करके अपनी खैरियत तो बता देती। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। भाभी तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे बिछड़ा महबूब मिलने के बाद कैफियत हुई हो। मेरे पास सूफी, माही, गिलजेब और बिलवीर सिंह मौजूद थे।
इसलिए मैं भाभी से ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था जिससे सूफी लोगों की नजरों में मैं मशकूक बन जाऊं। इसलिए मैंने मौजू बदलते हुए भाभी को मुख्तसर अपनी अपडेट बताते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और सूफी लोगों को भी बाजियाब करवा लिया है। आप सुनाएं कैसी है? अबू और अम्मी कैसे हैं? क्या आंटी उधर ही है? मैंने एक ही सांस में कितने सवाल करके भाभी को मौजू बदलने पर मजबूर कर दिया। भाभी बोले, 2-3 दिन से अबू की तबीयत ठीक नहीं है। जिस दिन से तुम गए हो इस दिन से तुम्हारी याद करके वो रोते रहते हैं और आंटी बेचारी का भी यही हाल है। तुम्हारा भाई कुछ देर पहले गांव गया है, मैंने पूछा, और शादा उधर है या वो भी गांव चला गया? भाभी बोले, जब तुम गए थी इसके दूसरे दिन वो गांव चला गया था। शायद चौधरी का किसी से झगड़ा हो गया था। यहाँ 6-7 गिनमैनों की ड्यूटी लगाई गई थी जो 24 घंटे यहाँ मौजूद रहते थे। मैंने कहा, अबू से और आंटी से बात करवाएं जल्दी। भाभी बोले, 1 मिनट रुको, मैं आंटी को बुलाती हूँ। ये कहते ही भाभी आंटी को आवाज देने लगे। कुछ ही देर में आंटी आई तो भाभी ने आंटी को रिसीवर पकड़ाते हुए कहा, ये लो आंटी से बात कर लो। अबू को मैं बिला कर लाती हूँ। अगले ही लम्हे आंटी रोती हुई बोले, हेलो यासिर प्यारे, कहाँ हो तुम? मेरी बच्चियां कहाँ हैं? किस हाल में हैं? मैंने कहा, आंटी मैं भी खैरियत से हूँ और सूफी और माही और गिलजेब भी खैरियत से हैं। इसी दौरान करीब बैठी माही ने सब्र का मुजाहरा करते हुए अचानक मेरे हाथ से रिसीवर छीन लिया और हेलो अम्मी कहते हुए रोना शुरू कर दिया। मैं इशारों से रोकने की कोशिश करता रहा मगर माँ से जुदाई के बाद माँ की आवाज सुनकर वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। यही दुख इसे रोते पर मजबूर कर रहा था। माही अभी कुछ बोल नहीं पाई थी कि सूफी ने माही से रिसीवर ले लिया और रोते हुए आंटी से बात करना शुरू कर दी। इसी दौरान मैं गिलजेब को देख रहा था। वो बेचारी भी ये जज्बाती मंजर देख रही थी। शायद सूफी लोगों को जज्बाती तौर पर अपनी माँ के साथ बात करते देखकर इसे अपनी माँ की याद आ गई थी कि काश मेरी माँ भी जिंदा होती तो मैं भी ऐसे ही जज्बाती होकर रिसीवर छीनकर अपनी माँ को अपना दुख बताती, इसे खुशखबरी सुनाती कि मैं भी जिंदा हूँ, मुझे भी बाजियाब करवा लिया है। मगर इस बेचारी के पास सिवाय हसरत भरी नजरों से ये मंजर देखने के कुछ नहीं था। इसकी कैफियत देखकर मुझसे रहा ना गया। मैं बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए आगे हुआ और बोला, क्या हुआ गिलजेब? तुम क्यों रो रही हो? जैसे वो सूफी और माही की माँ है वैसे ही वो तुम्हारी भी माँ है। और तुम्हारी आंटी से बात करवाता हूँ। ये कहकर मैंने इसे उठाकर सूफी के करीब लाकर कहा, सूफी गिलजेब की आंटी से और भाभी से बात करवाओ। सूफी समझदार थी, इसने मेरी बात फौरन समझ ली। इसने अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए आंटी से कहा कि गिलजेब से बात कर ले, वो अपनी अम्मी को याद करके रो रही है। ये कहते हुए सूफी ने गिलजेब को रिसीवर पकड़ा दिया। जो हकीकी माँ की मोहब्बत और कुर्बत का सुकून मिलता है वो किसी और की हमदर्दी के चंद बोल सुनकर नहीं मिलता। फिर भी हमदर्दी के चंद बोल सुनकर दिल को कुछ हौसला मिल जाता है। आंटी भी मौका की मुनासबत से गिलजेब से बात कर रही थी, जिससे गिलजेब के चेहरे पर सुकून नजर आता महसूस हो रहा था। गिलजेब आंटी और भाभी के साथ बात करके काफी हद तक संभल चुकी थी। गिलजेब के बाद माही काफी देर तक उनसे बात करती रही। कुछ देर बाद अबू से मेरी बात हुई। अबू मेरी वजह से काफी परेशान थे। मेरी आवाज सुनकर वो जिस अंदाज में रिसीवर के माइक को चूम रहे थे, मेरी बलाई ले रहे थे, ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अबू के प्यार से माँ की मोहब्बत झलक रही थी। कुछ देर अबू के साथ बात करके दिल को सुकून मिल गया। मेरी खैरियत मालूम पड़ने पर अबू काफी हद तक संभल गए थे। कुछ देर बाद कॉल बंद हो गई। सूफी और माही आंटी से बात करके ऐसे खुश हुई जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। बिलवीर सिंह का मैंने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और उससे एक रिक्वेस्ट की कि अगर कोई मसला ना हो तो जितने दिन सूफी लोग यहाँ हैं उनकी बात करवा दिया करें। ये कहकर मैं सरगोशी में बोला क्योंकि मुझे तो कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होना था। मेरी गैर मौजूदगी में आंटी से बात करवा के उन्हें हौसला मिलता रहेगा। बिलवीर सिंह बोले, तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं घर वालों को कह दूंगा कि रोजाना उनकी बात करवा दिया करें। मजीद कुछ देर गुजरने के बाद बिलवीर सिंह ने हरियाणा के लिए निकलने का पैगाम दिया। मैंने सूफी से मोहब्बत भरी अलविदा करके इजाजत ली और बिलवीर सिंह के साथ कोठी के दूसरे पोर्शन में आ गया जहां सब साथी मौजूद थे।
मुझे हशाश बिशार देखकर जहान ज़ेब खान और माजो ने मुझे फिक्रे किसे उनके लुत्फ अंदोज होते हुए फिक्रों का जवाब देते हुए मैं भी उनके साथ चुटकुलेबाजी करने लगा। शाम का साया फैलना शुरू हो गया था। अंधेरा होते ही हमें हरियाणा की तरफ रवाना होना था। हमारी मुशावरत में 1 घंटा गुजर गया। तब तक रात की सियाही ने दिन के उजाले को अपनी आगोश में समेट लिया था। हमने जरूरी असलहा, हथियार और दीगर सामान गाड़ी में रखकर वहां से रवाना हो गए। 4-5 घंटे का सफर हमने हंसी मजाक में तय कर लिया। हमारी टीम के साथियों के अलावा हमारे साथ बिलवीर सिंह, अमरजीत सिंह, सरदार कुंडा सिंह और चौथा सरदार निजीत उर्फ नजू सिंह था। हम सब में सूफी बिलवीर सिंह ज्यादा उम्र का था, बाकी सब तकरीबन हम उम्र थे। इसीलिए सब में फ्रैंक माहौल बन चुका था। सब ऐसे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। हरियाणा पहुंचते तक रात के 11 बज चुके थे। दौरान सफर सूफी एक जगह हम रुके थे, वो भी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल डलवा कर लेने के लिए। बाकी का सारा रास्ता नॉन स्टॉप ही तय किया। हरियाणा शहर काफी रौनकदार था। हरियाणा शहर के जिस इलाके में बिलवीर सिंह के चचा की कोठी थी वो इलाका काफी साफ सुथरा और हाई सोसाइटी का नजर आ रहा था। कुछ देर में गाड़ी एक आलीशान बंगले नुमा कोठी के बाहर रोक दी गई। बिलवीर सिंह गाड़ी से उतरकर गेट पर गया। गेट पर खड़े गिनमैन से मिलकर उसने गेट खुलवा दिया। गाड़ी समेत हम सब कोठी के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचकर बिलवीर सिंह ने हमें नीचे आने का कहा। गाड़ी से उतरकर मैंने कोठी का बजाजा लेना शुरू किया। कोठी की इमारत गेट से काफी आगे जाकर थी। बाहर के सारे एरिया में पार्क और ग्रासरी थी। दाएं जानिब छोटा सा ग्राउंड था जिसमें कुर्सियां वगैरह लगी हुई थीं। कोठी का बनाव ऐसा था जैसे ये किसी बड़े सियासी शख्सियत की हो, क्योंकि जिस अंदाज में कुर्सियां रखी हुई थीं ऐसे लगता था जैसे यहां लोगों की आमद और रफ्त रहती है। बिलवीर सिंह ने हमें कोठी के अंदर ले जाने की बजाय दाएं जानिब कुर्सियों की तरफ ले गया। हम टोटल 11 लोग थे। सब उधर कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ ही देर में कोठी के अंदर से एक अंकल टाइप कदावर सरदार के पीछे 6 फुट से जायद कद के ढेर सारे 5 नौजवान नमूदार हुए। उनको देखकर अमरजीत सिंह ने हमें बताया कि ये बिलवीर सिंह का चचा जरनैल सिंह है और उसके साथ 5 उसके बेटे हैं। उनको देखकर हम सब खड़े हो गए। जरनैल सिंह मूंछों को ताव देते हुए हाथ के इशारे से बोला, और भाई जवानों, खैरियत नाल पहुंच गए हो? हमने तो आहिस्ता से कहा, जी सरदार जी, मगर अमरजीत सिंह और कुंडा सिंह इसी अंदाज में बुलंद आवाज में सुसरी काल करते हुए खैरियत से पहुंचने के बारे में बोल पड़े। बिलवीर सिंह ने अपने चचा से हम सब का तारुफ करवाया। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि बिलवीर सिंह ने हमारे असली नाम लेते हुए तारुफ करवाया था, हालांकि हम सब सिखों के हलके में थे। बिलवीर सिंह के तारुफ करवा देने से मैं समझ गया कि वो अपने चचा को हमारी सारी हकीकत से आगाह कर चुका है। वैसे भी हम जिस मकसद के लिए आए थे, हमारी असलियत का बताना जरूरी था। जरनैल सिंह अपनी मखसूस कुर्सी पर बड़ी शान से टांग पर टांग रखकर बैठे और मूंछों को ताव देने लगे। कुछ देर बाद हमारी खातिर तवाज़ो के लिए लवाजमात पेश किए गए। 2 घंटे हमारी रस्मी गुफ्तगू में गुजर गए। जहान ज़ेब खान ने असल मौजू छेड़ते हुए जरनैल सिंह से साथियों की गिरफ्तारी के बारे में बात शुरू कर दी। जरनैल सिंह चंद लम्हे सोचते हुए बोले, तुम लोगों के साथी इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में हैं और उनको निहायत सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। अगर हम लाख कोशिश भी कर लें तो इस सिचुएशन में हम उन्हें मिलिट्री की कैद से आज़ाद नहीं करवा सकते। जहान ज़ेब खान बोला, तो फिर कैसे आज़ाद करवा सकते हैं? जरनैल सिंह बोले, मिलिट्री वाले ऐसे कैदियों को ज्यादा दिन एक जगह नहीं रखते। 2 से 3 दिन में एक से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं। मैं खुद कर्नल रह चुका हूं, इसलिए मुझे मिलिट्री के बारे में सब कुछ पता है। वैसे भी मेरे कुछ खास बंदे अभी भी मिलिट्री में हैं। कल मुझे ये खबर मिली थी कि 2 आतंकवादियों को कल्हाड़ जेल में रखा हुआ है। बाकी मजीद में पूछता हूं एक बंदे से। ये कहकर उन्होंने अपने करीब बैठे लड़के को बोला, जा धम्मयत पी, मेरी डायरी लेकर आ। जरनैल सिंह के मुंह से धम्मयत सुनकर मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने मनमयत कहा है। धम्मयत सिंह उनके बेटे का नाम था। इसका मतलब मनमयत कौर भी जरनैल सिंह की ही बेटी है, क्योंकि नाम की मुशाबहत इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि धम्मयत और मनमयत दोनों बहन भाई हैं।
हालांकि अभी तक मनमयत कौर का ख्याल मेरे जहन में नहीं था। जैसे ही उन्होंने धर्मयत कहा, इसी लम्हे मेरे जहन में मनमयत कौर का ख्याल गर्दिश करने लगा। धर्मयत सिंह ने जी अच्छा कहकर कोठी की जानिब चला गया। कुछ देर बाद धर्मयत सिंह वापस आया तो उसके हाथ में डायरी पकड़ी हुई थी। जरनैल सिंह ने डायरी पकड़कर खोली, वरक गर्दांती करते हुए अपने बाईं जानिब बैठे बेटे को कहा, उते दमन मैयत PA नंबर मिला के दे। दमन मैयत सिंह ने डायरी पर नंबर देखकर मोबाइल पर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तनमीर के बाद तनमीर सुनकर मेरी तशंगी में इजाफा होना शुरू हो गया। मेरा बस ना चल रहा था कि अभी जरनैल सिंह से पूछ लूं कि आपकी कोई बेटी है जिसका नाम मनमीत कौर है। हालांकि सुरेश मनमीत कौर और मेरे बारे में सब कुछ जानता था। अमृतसर से हरियाणा आते हुए वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। मैंने इससे भी इस बात का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे शक है कि मनमीत कौर बलवीर सिंह के चचा की बेटी है। तनमीर सिंह ने कॉल मिलाकर मोबाइल अपने बाप को पकड़ा दिया।